वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। सी आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? So number 1 point, ax square bx plus c is equal to 0. This pattern is called the quadratic equation. So you always get a two solution, okay, and degree here is 2. So you know the Siddharacharya formula is that this is minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a, okay. लेकिन ए कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? जो सिद्धार्थ महाशय जो मैथमेटिशियन था कैसे ए फॉर्म किया, सो वो मैं दिखा रहा हूँ। पहले इस इक्वेशन को ए से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर में पैटर्न में होल स्क्वायर पैटर्न में सजाना होगा। तो इन दोनों जगह में आप सोचो ए स्क्वायर और यहाँ पे ट्वाइस ए भी, दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर एंड ट्वाइस ए, दिस इज ए। सो बी इज हेयर, सो देखो यहाँ पे जो रहेगा उसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करके लिखोगे, सो लाइक दैट, ओके, ऐसे। सो अभी दिस इज कॉल्ड बी, एक्चुअली दिस इज बी बाई ट्वाइस ए, सो दिस इज होल स्क्वायर, सो यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर। सो नाउ ये जो सी बाई है इसको राइट हैंड साइड में लिखे जाओ, एंड फॉर सी हियर दिस एंड दिस कंपेयर विद दैट एंड दिस आर दिस इक्वल, बट दिस इज द पार्ट हियर इज, बट दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट। सो इसीलिए दोनों साइड में जैसे इधर में ऐड किया, इधर में ऐड करने के बाद इक्वालिटी आ जाएगा, ओके। सो अभी ये जो पूरा ब्रैकेट में है ये होल स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर। सो दिस इज हियर वी टेक एन एलसीएम, that is 4a square, so b square minus 4ac, okay। अभी यहाँ से x plus b by twice a equal to plus minus under root, so b square minus 4ac by 4a square लिख सकता हूँ। so clear view आ गया, this is x equal to, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, twice a b by twice a, and this is plus minus, this is the under root. If we want to write here, this is twice a, so root over 4 square means 4 over twice a, so under root of b square minus 4 ac। अभी LCM ले लिया, 2 है, twice a है, twice times of a है, and this is minus b and plus minus root over b square minus 4 ac, okay। से हो गया सीधा जगह फॉर्मूला, ठीक है। अभी मैं जो चीज कहना चाहता हूँ, सो दोनों रूट्स आ गया, लेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। सो उसी से मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम दिस इज टेक अ साइन प्लस, ओके, सो b स्क्वायर माइनस 4ac by twice, and then b is equal to, it is minus b, this is minus, here is plus, so you take here sign here minus, so this is minus b, minus b square minus 4ac by twice a. If we add these two, like alpha plus beta c, so this is minus b plus root over b square minus 4ac by twice a. Again this is plus minus b minus root over b square minus 4ac by twice a। so अभी इसको LCM twice a ले लिया, so गया minus b plus root over b square minus 4ac minus b minus root over b square minus 4ac, ये दोनों काट गया, so अभी आ रहा है this is minus b by a। अभी इन दो रूट्स को जब प्रोडक्ट करोगे, दिस इज अल्फा इंटू बीटा,
So you get here minus b plus root over b square minus 4ac by twice a and into minus b minus root over b square minus 4ac by twice a. So this is here twice a into twice a, this is here 4a square. So this is minus b whole square and this is root over b square minus 4ac whole square. So see, this is b square plus 4ac by 4a square, that is c by a. Okay, so if root you have given that the alpha beta, so sum of the roots is minus b by a and product of the roots c by a. You know, if we get x equal to alpha and x equal to beta, so it is implies that x minus alpha and x minus beta इक्वल टू 0, देन यू कैन से x इक्वल टू अल्फा x बीटा. अभी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलता है, दैट इज एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स and alpha into beta equal to 0. This is the another formula. If we know the sum of the roots is alpha beta and product of the roots is alpha into beta, so you can easily use this formula to forming the equation. Okay, ऐसे करोगे सुविधा होगा. So अभी हम लोगों को जो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नंबर 1 दिस इज सीधा जो फॉर्मूला, and number 2 sum of the roots alpha plus beta that is equal to minus b by a, product of the root this is that is equal to c by a and this. Okay, ये सारे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अच्छा से. ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, अच्छा से देख लो. सो जो चीज़ याद रखना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ अल्फा बीटा विद द रूट्स, सो अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. सो जो अल्फा बीटा आप लोगों को मिला था वो भी लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस एंड बीटा इक्वल टू था एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए. अभी जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है नेचर ऑफ द रूट्स. एंड नाउ वी वांट टू गेट द नेचर ऑफ द रूट्स. दिस इज डिपेंड ऑन द विद इन द रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट. एक्चुअली हिंदी में कहता है इसे निरूपक जो होता है उसको निरूपक भी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. एक्चुअली द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन दैट. सो पहले ये चीज़ डिस्कस करने से पहले हम लोगों को एबीसी कुछ नंबर लेट करना पड़ेगा, रैशनल इरेशनल. तो मैं पहले एबीसी को रैशनल सोच के थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, नंबर 1 पॉइंट सी नंबर 1 एंड दैट इज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर, सो मानता हूँ ए बी सी आर रैशनल. तो रैशनल के बेसिस में मैं पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं. नंबर ए पॉइंट, व्हेन बी स्क्वायर माइनस, एक्चुअली पहले मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ओके, सो नंबर ए पॉइंट, व्हेन b square minus 4ac is greater than 0 but not perfect square. I mean to say perfect square means that type of number like 4, 16, 25 like that number, but we not get the perfect square number. So ध्यान से देखो, तो रूट के अंदर जैसे 2 या 3 या 8 या 15 ऐसे कुछ नंबर डालोगे, पूरा चीज रूट से नहीं निकाल रहा है तो रूट के अंदर रह जा रहा है. सो दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर, लाइक √2, √3, √8 मतलब 2√2 होता है लेकिन √2 रह गया, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कहते हैं. सो उसका बेसिस में मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ व्हेन द दिस फिगर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर.
सो ध्यान से देखो, देन द रूट्स आर नंबर 1 रूट्स आर रियल। जैसे जब भी ग्रेटर देन होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल रूट। नंबर 2, and this is not a perfect sum, so irrational. नंबर 3 क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों अलग अलग वैल्यू मिलेगा, इसीलिए डिस्टिंक्ट। यहाँ पे वैल्यू है इसीलिए जब डालोगे दोनों प्लस और माइनस से दोनों अलग अलग वैल्यू मिलेगा। सो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, सेम नहीं, डिफरेंट। तो रियल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। और एक चीज देखो, नंबर बी, when b square minus 4ac is greater than 0 but perfect square। ओके, जैसे 16, 25, 9 ऐसे नंबर मिल रहा है, तो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, रूट फ्री होगा, तो हम लोग क्या कह सकते हो, दिस इज रैशनल, रूट से अंदर के नहीं है। और पहले ध्यान से देखो, डिस्कस करने से पहले मैं क्या माना था, एबीसी आर रैशनल। एवी रैशनल नंबर, एवी रैशनल नंबर है, रूट से फ्री हो रहा है, एवी रैशनल नंबर से एवी रैशनल है, रूट से फ्री हो रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा हूँ ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके अंदर कोई परफेक्ट वैल्यू लाइक 4, 16, 9 यहाँ पे डाल के रूट से बाहर आ जाएगा, 25 रूट से बाहर आ जाएगा, तो दैट टाइप ऑफ नंबर वी कैन से द रैशनल नंबर। ओके, सो नंबर 1 दिस इज ग्रेटर देन दिस फर्स्ट पॉइंट, then the roots are real, greater than ACLA. Number 2 rational. Number 3 distinct। अच्छा से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनो। आप लोगों को क्या बताया, एबीसी रैशनल सोच के आ गया, तो तुम लोग नेचर फाइंड करने के लिए हमेशा ही b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालोगे। देखा 100 आया, तो क्या है, ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर का कैरेक्टर आ गया। यही देखोगे यार, रैशनल बोल दोगे ये चीज नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, लेकिन उसके बाद हम लोग को जानना पड़ेगा एबीसी का नेचर क्या है। जैसे यहाँ पे एबीसी नेचर क्या है, रेशनल पकड़ के किया, तो इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर आ गया, रैशनल बोल रहा हूँ। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया लाइक 100 आ गया, लेकिन 100 आ गया तो मैं रैशनल कह सकता हूँ, नहीं। उसके पहले देखो, यहाँ पे बी आर ए होता है, यहाँ पे बी आर ए होता है, एफ ही रैशनल होना जरूरी है। तो यहाँ पे सोच लो, इक्वेशन में √2 दे दिया, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे √2 है ना, एक परफेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे √2 आ गया, यहाँ पे √2 आ गया, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, बट नेवर बी अ रैशनल नंबर, यहाँ पे इरेशनल है। तो ये चीज थ्योरी डिस्कस करने से पहले मैं ए बी सी का नेचर में मान लिया था रैशनल, उसी का हिसाब से रैशनल हुआ। सो कोई भी जब नेचर फाइंड करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद भी आप लोगों को बी आर ए का वैल्यू का नेचर जानना पड़ेगा, या रैशनल या इरेशनल। रैशनल होगा तो यू कैन से दिस इज रैशनल नंबर, रैशनल रूट्स, बट इफ वी सी द वैल्यू इज √2, √3, √8, ऐसे कुछ एक वैल्यू आ गया, so you can't say this is not a rational number, this is not a rational, is a irrational number। okay, अच्छा से देख लोगे। so number C point, जैसे when b square minus 4ac is equal to 0 then the roots are equal। number 1 real and number 2 equal। सो ध्यान से देखो, ये जब 0 हो जाए तो देखो 0 आ गया, अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है, -b/2, ये भी 0 होता है, सो -b/2, दोनों सेम वैल्यू आ गया, इसीलिए इक्वल बोल रहा हूँ। अब तो ये भी क्या माना था अब लोगों ने, एबीसी रैशनल माना था, तो इसीलिए तो दिस इज द रियल वैल्यू, सो रियल रूट्स होगा क्या। ओके, नंबर 3 एबीसी डी पॉइंट, when b square minus 4ac is less than 0 then the roots are complex। ओके, क्या मानोगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स।
b square minus 4ac less than 0, then the roots are कॉम्प्लेक्स। ओके, यही थ्योरी है। फिर और एक मैं पॉइंट डिस्कस करना, अच्छे से नोट कर लो आप लोग, ठीक है। मैं नेक्स्ट पॉइंट अभी अब डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, जैसे ए एक्स स्क्वायर दे दिया, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान से एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, सोच ले आप लोगों के पास यहाँ पे अल्फा प्लस रूट बीटा, क्या है, रूट बीटा एक रूट है। सो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस रूट बीटा। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस रूट बीटा, दूसरा क्या होगा हमेशा अल्फा माइनस रूट बीटा। दिस इज द कॉन्जुगेट पेयर, दोनों एक साथ रहता है। ए रहेगा ए नहीं रहेगा ऐसे होता नहीं। मैं वो कैसे क्यों मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे दोनों एक साथ रहता है। एक्चुअली लाइक हर स्टूडेंट ये रहेगा तो ये रहेगा। नंबर 2 पॉइंट, अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो अल्फा माइनस आई बीटा भी साथ में रहेगा। दे ऑलवेज अ कॉन्जुगेट पेयर, हमेशा एक साथ रहते हैं। और आई मतलब क्या होता है जान लो, आई मतलब रूट ओवर माइनस 1। ओके, दिस इज रूट ओवर माइनस 1, सो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इमेजिनरी आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ध्यान से देखो, मैं ए दूसरा वाला 2 पॉइंट वाला मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ए रहेगा तो ए भी रहेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा, ये शो कर रहा हूँ। सो लेट अल्फा प्लस आई बीटा be the roots of the equation ax square bx plus c equal to 0. So therefore then we have to show that alpha minus I beta is also a root of the above equation. Okay, as this is the root, first this is the root, so यहाँ पे मैं डाल दूँ, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2i अल्फा बीटा, ओके, बी अल्फा आई बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी इसको अंदर में मल्टीप्लाई करो, आई इसका मतलब क्या होता है -1, यहाँ पे -1 डाल दो। सो ए इंटू अल्फा स्क्वायर, ओके, ए इंटू बीटा स्क्वायर, फिर 2i a अल्फा बीटा b अल्फा i b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 implies that a रियल जितना सारे पार्ट है एक साथ मैं लिखता हूँ। सो a अल्फा स्क्वायर a बीटा स्क्वायर b अल्फा प्लस c प्लस i इंटू, take common I, this is 2a alpha beta, 2a alpha beta plus b beta equal to 0. So in place of 0 we can write 0 plus I0. So compare with 0, this part equal to 0 and this part equal to 0. So comparing कर रहा हूँ, so a alpha square a beta square b alpha c equal to 0 and 2a alpha beta b beta equal to 0. Okay, now we have to show the second root is this. So we put in place of x, then we have to show this is a 0. Okay, that is the logic. Now putting x equal to alpha minus I beta a into alpha minus I beta whole square b into alpha minus I beta plus, you don't write here equal to 0, we have to show this is a 0. So this is equal to, expand the value,
So alpha square I square beta square, okay. So this is b alpha I into b beta plus c equal to 0. Again multiply by this a alpha square minus a beta square. So this is b alpha plus c, okay. And now take minus I common, so 2a alpha and beta plus b beta equal to 0. So this is let a and this is 2. So 1 and 2. So is don't say this is a 0. Sorry, I have wrongly written, and this is actually wrongly written. This is not a 0. So we have to show this is a 0. So this is equal to, actually not implies that. Okay. So see, this is 0. A alpha square a beta square b alpha plus c, okay. So this is 0 minus same as 2a alpha beta b beta equal to 0. So I into 0, so it is 0. So this is proved, okay. So मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसी के ऊपर में कम से कम 50 या 60 प्रॉब्लम है डिस्कस कर लूँगा. आप लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देख लेना. ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू.